ناظرین، کچھ کہانیاں شور سے شروع نہیں ہوتی، وہ خاموشی سے شروع ہوتی ہیں، ایسی خاموشی سے جو ایک گھر میں پھیلی ہوتی ہے جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک سبق آموز اردو اخلاقی کہانی ہے جو رفیق نام کے ایک عام آدمی کے فیصلے سے شروع ہوتی ہے۔ رفیق ایک سرکاری دفتر میں ایک معمولی کلرک مگر دل میں سچائی کی قدر رکھنے والا انسان تھا۔ شام کے وقت وہ اپنے چھوٹے سے صحن میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ سامنے اس کا بیٹا بیٹھا تھا جو ایک اسکول میں استاد تھا، اور پاس ہی اس کی بیٹی تھی جو نرس کے طور پر کام کر رہی تھی۔ رفیق کے پاس دولت نہیں تھی مگر اس کے بچوں کے چہروں پر اعتماد اور خودداری تھی، اور یہ سب ایک فیصلے کا نتیجہ تھا۔ ایک دن جب رفیق نے رشوت کے 50,000 روپے کو انکار کہا تھا۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک گمنام محلے کے ایک تنگ سے مکان کی ہے جہاں 2 کمرے، ایک چھوٹا سا صحن اور ایک مدھم روشنی والا بلب زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ رفیق ہیں، چہرے پر وقت کی لکیریں اور ہاتھوں میں وہ سختی ہے جو صرف مشقت سے آتی ہے۔ رفیق کے سامنے ان کی بیوی بیٹھی ہے جو مڑے تڑے نوٹوں کو بار بار گنتی ہے، جیسے گننے سے رقم بڑھ جائے گی۔ یہ اس گھر کا وہ شور ہے جو باہر سنائی نہیں دیتا، یہ بے بسی کا شور ہے۔ شام کا وقت تھا، بجلی آ چکی تھی مگر گھر میں روشنی کے باوجود اندھیرا سا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ایک کونے میں 2 بچے سو رہے تھے، ان کے کپڑے صاف تھے مگر پرانے، ان کے چہرے پرسکون تھے، جیسے انہیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ پرسکون نیند کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ رفیق بوڑھا ہو گیا مگر اس کی زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ یہ سکون دولت کا نہیں بلکہ ایمانداری کا تھا۔ اس کا بیٹا بچوں کو تعلیم دے رہا تھا اور اس کی بیٹی مریضوں کی خدمت کر رہی تھی۔ یہ سب اس سبق آموز کہانی کا نتیجہ تھا جو برسوں پہلے ایک سرکاری دفتر میں لکھی گئی ایک فائل سے شروع ہوئی۔ وہ فائل دراصل رفیق کے ضمیر کا امتحان تھی۔ چند دن پہلے رفیق اسی سرکاری دفتر میں ایک میز کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے ایک افسر بیٹھا تھا جسے سب صاحب کہتے تھے۔ صاحب نے کہا کہ ایک فائل میں صرف تاریخ بدلنی ہے۔ کہا گیا کہ یہ کوئی بڑا جرم نہیں اور نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ پھر رشوت کے طور پر 50,000 روپے کی پیشکش کی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں رفیق کے سامنے آسان راستہ موجود تھا، مگر رفیق نے فائل کو ہاتھ میں لیا، چند لمحے دیکھا اور پھر خاموشی سے میز پر واپس رکھ دیا۔ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا تھا کہ میں کب تک بچوں کو یہ یقین دلاتا رہوں گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج اسے کام پر ایک بات سننے کو ملی تھی، ایک ایسی بات جو اس کے لیے نئی نہیں تھی مگر آج کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ کسی نے اس سے کہا تھا کہ اتنا سیدھا ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، آسان راستہ بھی ہوتا ہے زندگی میں۔ اس نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے سر ہلا دیا تھا، لیکن وہ جملہ اس کے ساتھ گھر تک چلا آیا۔ وہ بچوں کو دیکھتا ہے، ان کے جوتے دروازے کے پاس رکھے ہیں، ایک جوتے کا تلا گھس چکا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ اسکول کی فیس ابھی باقی ہے، دوائی بھی لینی ہے، اور کرایہ دار نے 2 دن پہلے یاد دہانی بھی کرائی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس جیسے ہزاروں لوگ ہیں جو ہر روز یہ جنگ لڑتے ہیں، لیکن ہر جنگ میدان میں نہیں لڑی جاتی، کچھ جنگیں انسان اپنے ضمیر کے اندر لڑتا ہے۔ اس کی بیوی خاموشی سے اس کے پاس آتی ہے، آہستہ سے بولتی ہے، آج سبزی نہیں بنائی اور آٹا بھی کم ہے، کل کچھ انتظام ہو جائے گا نا؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ امید تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہتا ہے، پھر کہتا ہے، ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کچھ کیا ہوگا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کچھ کی قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ وہ باہر صحن میں نکل آتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کوئی شکایت نہیں کرتا، بس سوچتا ہے۔ آج پہلی بار اس کے دل میں ایک خوف نے جگہ بنائی تھی، اگر اس نے آج کمزوری دکھا دی تو اس کے بچے کل کیا سیکھیں گے؟ ایمانداری یا سمجھوتا، وقار یا سہولت، سچ یا آسانی؟
नाजरीन, ये कहानी गुर्बत की नहीं, ये कहानी एक इंतखाब की है और अभी इंतखाब होना बाकी है। अगले दिन वो मामूल से पहले घर से निकला। चेहरे पर थकन थी मगर कदमों में एक बेचैनी, जैसे वो जानता हो कि आज कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। रफ़ीक उस दफ्तर में एक मामूली मुलाजिम था। कागजात की फाइलें उठाता, लोगों को रास्ता बताता। उसकी नौकरी छोटी थी मगर साफ थी। उसी दफ्तर में एक शख्स था जिसे सब साहब कहते थे। वो ताकतवर नहीं था मगर निज़ाम को समझता था, और जो निज़ाम को समझ लेता है वो दूसरों की कमज़ोरी भी समझ जाता है। दोपहर के करीब उसे इशारे से बुलाया गया, ज़रा इधर आना। वो खामोशी से करीब गया। सुनो, तुम मेहनती हो, सीधे भी हो, मगर सीधे लोग हमेशा सीधे नहीं रह सकते। जिंदगी में थोड़ा समझौता करना पड़ता है। रफ़ीक कुछ ना बोला। साहब ने फ़ाइल मेज़ पर रखी। ये फ़ाइल आगे बढ़ानी है, दस्तखत एक दिन पहले हो जाएंगे, बस तारीख बदलनी है। कोई बड़ा जुर्म नहीं, ऊपर वाले खुश, तुम खुश। वो समझ गया था ये वही आसान रास्ता था जिसका जिक्र कल हुआ था। उसके बदले उसने आहिस्ता से पूछा। साहब ने गर्दन झुकाई और आहिस्ता से कहा, 50,000 रुपये, और ये तो बस शुरुआत है। 50,000, इतनी रकम उसने एक साथ कभी नहीं देखी थी। उसके जहन में फ़ौरन तस्वीरें बनने लगीं। किराया अदा हो जाएगा, दवाई आ जाएगी, बच्चों की फ़ीस, राशन। साहब उसके चेहरे के बदलते तासुरात देख रहे थे। देखो, सब यही करते हैं, तुम कोई नया काम नहीं कर रहे हो, बस मौका को इस्तेमाल कर रहे हो। वो फाइल को देखता रहा। कागज़ आम था, अल्फाज सादा थे, मगर उसके वज़न ने उसके हाथ भारी कर दिए थे। सोच लो, शाम तक जवाब चाहिए, साहब ने कहा। रफ़ीक दफ्तर से बाहर निकला तो धूप तेज थी मगर उसे सर्दी लग रही थी। वो एक दुकान के बाहर बैठ गया। चाय मंगवाई, चाय ठंडी हो गई मगर उसने पी नहीं। वो सोच रहा था, क्या वाकई गलत है? क्या एक तारीख बदलने से दुनिया तबाह हो जाएगी? क्या मेरे बच्चों की भूख ज़्यादा बड़ी नहीं? फिर एक और आवाज़ आई, अगर आज ये दुरुस्त है तो कल क्या गलत होगा? उसे अपने बाप याद आए। गरीब थे मगर साफ कहते थे, बेटा, इज्जत पेट नहीं भरती, मगर पेट भरने के बाद अगर इज्जत ना हो तो इंसान खाली रह जाता है। वो घर की तरफ चला। घर में खामोशी थी। बच्चे स्कूल से आ चुके थे। बीवी ने दाल बनाई थी मगर कम। वो बैठ गया, कुछ ना बोला। बीवी ने महसूस कर लिया था कि कुछ मुख्तलिफ है। क्या हुआ? वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर हमारे पास पैसे आ जाएं बहुत सारे तो क्या हम खुश हो जाएंगे? वो चौंकी, कहाँ से आएंगे? रफ़ीक नज़रें झुकाकर बोला, बस सवाल कर रहा। बीवी ने आहिस्ता से कहा, पैसे अगर इज्जत के साथ आएं तो खुशी बन जाते हैं, वरना वो सिर्फ सहूलत होते हैं, सुकून नहीं। उस जुमले ने उसके अंदर कुछ हिला दिया। वो बच्चों को देखता है। बेटा लिख रहा है, बेटी कापी में फूल बना रही है। क्या वो उनके मुस्तकबिल को एक फाइल के बदले में बेच सकता है? रात को वो सो नहीं सका। बार बार वो फाइल, वो रकम, वो साहब की आवाज़ याद आती रही। सब यही करते हैं। लेकिन फिर उसे लगा, अगर सब यही करते हैं तो फिर कोई सही क्यों नहीं रहता? यही वो लम्हा था जहाँ किसी का वज़न बदलने लगा। यहाँ से ये सिर्फ गुर्बत की कहानी नहीं रही, ये ज़मीर की कहानी बन गई और फैसला अब करीब था। अगली सुबह वो दफ्तर मामूल से पहले पहुंच गया। चेहरा थका हुआ था मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे रात भर वो लड़ चुका हो और अब फैसला कर चुका हो। दफ्तर में वही शोर, वही फाइलें, वही लोग, सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ उसके अंदर कुछ बदल चुका था। साहब ने उसे देखते ही कहा, आ गए? मैं समझ गया था तुम अक्लमंद आदमी हो। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैंने फाइल देखी है और मैंने सोच भी लिया है। साहब मुस्कुराया, बस फिर मसला ख़त्म, दस्तखत कर दो और अपना हिस्सा लो। वो फाइल के करीब गया, उसे हाथ में लिया। कागज़ हल्का था मगर उसका वज़न उसके दिल पर भारी था। उसने फाइल मेज़ पर वापस रख दी। मैं ये नहीं कर सकता। कमरे में खामोशी छा गई। साहब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तारीख नहीं बदल सकता, मैं गलत दस्तखत नहीं कर सकता। साहब की आवाज़ सख्त हो गई। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तुम्हें खुद ही फ़ायदा हो रहा है, किसी का नुकसान भी नहीं हो रहा।
वो आहिस्ता से बोला, नुकसान हो रहा है, मेरा हो रहा है। कैसा नुकसान? साहब बोला, अगर मैंने आज ये कर लिया तो कल मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा कि ज़रूरत के वक्त सब जायज़ है? रफ़ीक ने कहा। साहब ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, बच्चे किताबों से नहीं सीखते, पैसे से सीखते हैं। वो सीधा खड़ा हो गया, नहीं साहब, बच्चे किरदार से सीखते हैं। कुछ लम्हे तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर साहब ने सर्द लहजे में कहा, ठीक है, मगर याद रखो ये दफ्तर सिर्फ ईमानदारी से नहीं चलता, यहाँ जगह बनानी पड़ती है। वो समझ गया था ये वार्निंग थी। चंद दिन बाद उसके काम में तब्दीली आ गई। उसे फाइलों से हटाकर दूसरे काम पर लगा दिया गया। कभी देर तक बिठाया जाता, कभी बेवजह डांटा जाता। तनख्वाह वक्त पर ना मिलती, ओवर टाइम ख़त्म हो गया। वो जानता था ये सज़ा है, उस नहीं की सज़ा। घर में हालात और सख्त हो गए, राशन कम हो गया, बच्चों की फ़ीस ताख़ीर से, दवाई उधार पर। बीवी ने एक दिन आहिस्ता से कहा, अगर उस दिन तुम हाँ कह देते तो शायद हालात कुछ बेहतर होते। ये शिकवा नहीं था, ये थकन थी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हाँ हालात बेहतर हो जाते मगर हम कमज़ोर हो जाते। बीवी ने उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। कुछ फैसलों का वज़न सिर्फ एक आदमी नहीं उठाता, पूरा ख़ानदान उठाता है। एक शाम बेटा उसके पास आया, बोला, अब्बा स्कूल में फ़ीस देर से दी है, टीचर ने डांटा है और मुझे बुरा महसूस हुआ। उसका दिल कांप गया, मगर उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बुरा सिर्फ तब होता है जब हम गलत रास्ता अख्तियार करें। हमने रास्ता सही रखा है, बस सफ़र मुश्किल है। बेटा खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर फ़ख्र सा उभर आया। ये वो लम्हा था जहाँ उसे पहली बार लगा कि उसका इनकार ज़ाय नहीं जा रहा। उसका घर अब भी सादा था मगर इज़्ज़त से भरा हुआ। रफ़ीक का बेटा अब एक स्कूल में उस्ताद था, बेटी एक नर्स थी, और एक शाम वो सब इकट्ठे बैठे चाय पी रहे थे। बातें हो रही थी। बेटे ने कहा, अब्बा आज एक बच्चे ने मुझसे पूछा, ईमानदारी मुश्किल क्यों होती है? वो मुस्कुराया और पूछा, तुमने क्या जवाब दिया? बेटे ने कहा, क्योंकि आसान रास्ते बहुत होते हैं और सही रास्ता हमेशा अकेला होता है। बेटी बोली, और सही रास्ता हमने आपसे सीखा है। वो खामोश हो गया, आंखें नम हो गईं। कभी कभी इंसान को अपने फैसले की कीमत फौरन नहीं मिलती, कभी वो कीमत सालों बाद मिलती है, जब उसके बच्चे उस फैसले को अपना रास्ता बना लेते हैं। ये कहानी उस आदमी की नहीं थी, ये उस नहीं की थी जो उसने एक दिन कही थी। एक लफ्ज़ मगर नस्लों की समझ बदल देने वाला लफ्ज़। कभी कभी एक इनकार पूरे ख़ानदान को बचा लेता है। अगर आप उसकी जगह होते, भूख एक तरफ और इज्जत दूसरी तरफ, तो आप क्या चुनते? और क्या आपका फैसला आपके बच्चों को मजबूत बनाता या सिर्फ आज का मसला हल करता? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हम सब का इम्तिहान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और किस्सा मुख्तसर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सबक आमोज़ कहानी से सीख सकें।